Hello everyone. Today is second lectures, and today I am taking the lectures of business law. You know that why is business law is very important to our daily routines. So today I am going to introduce to management student as a BBA. When we start the business and or when you do business, you must know the rules and regulations of business law. So that time we need of business law. So you should have interest, and if you are doing good practices in business law, you can will do very well in your career. So देखते हैं कि सबसे पहले बिजनेस लॉ होता क्या है. बिजनेस लॉ इज़ अ general rules and regulations which are followed everyone. Law is everyone. There is no any kind of exceptions irrespectively of age, gender. Everyone should follow these rules. So law are divided into two parts. Number one, international law and national law. So today I am going to explain you only national law, not international law, because international law is based on the different types of countries rules and regulations. So national law we will follow because in the national law there are two types of law. Number one, civil law, and number two, criminal law. In the civil law, there will be a constitutional law, there will be a property law, there will be a business law, there will be a industrial law, and there will be a administrations law. So in this law we will understand the main concepts of the business law. So what is the actual meaning of the business law? The business law is only we are using for our business purpose. So in the national law I have explained this some points like constitutional law, administration law, properties law, and industrial law, and last one is the business law. So I am taking the overall introduction related on the business law. अब देखिए बिजनेस लॉ एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या फिर मार्केट में हम देखिए एक रिलेशंस होते हैं इन द बिजनेस लॉ देर विल बी थ्री रिलेशंस. नंबर वन, नेचुरल रिलेशन जिसको हम बोलेंगे जैसे कि चाइल्ड एंड पेरेंट्स, इनका रिलेशंस होता है. कपल्स रिलेशंस जैसे कि हस्बैंड वाइफ्स, एंड इसको कहा जाएगा नेचुरल रिलेशंस. जैसे कि अब नेक्स्ट रिलेशन है सोशल रिलेशंस जिसको कहा जाता है कि जैसे कि फ्रेंड्स, कलीग्स, neighbors. These are the relations law. There will be a business law concept. We can say like property law. We can say sells your property and someone is buying and someone is selling the product. So this type of things we can say it is a contractual law, contractual relation law. So I hope all of you are getting this concept what I am teaching you. तो देखिए ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि बिज़नेस लॉ के एक बिज़नेस लॉ में भी बहुत सारे क्या है अलग अलग लॉज होते हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है, प्रॉपर्टीज़ लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ एंड बिजनेस लॉ. तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं बिज़नेस लॉ. तो मैंने आपको ऑलरेडी बिज़नेस लॉ क्यों इम्पोर्टेंस है ये भी बता दिया, बिज़नेस लॉ की क्यों ज़रूरत है. बिज़नेस लॉ हम डेली बेसिस पे जो हमारे जैसे कि अलग अलग तरह के रिलेशंस होते हैं जैसे कि बिज़नेस लॉ में थ्री टाइप के रिलेशंस होते हैं. नंबर वन, नेचुरल रिलेशन जिसमें हम पेरेंट्स एंड चाइल्ड, कपल्स, हस्बैंड वाइफ, इस तरह के रिलेशंस होते हैं. इनका भी अपने खुद के लॉज बने हुए हैं जो कि हम अभी दो टाइप बताया हूँ मैंने नेशनल लॉ के अंदर. एक होता है सिविल लॉ और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ. तो ऐसे बहुत सारे लॉ क्रिमिनल लॉ में भी आते हैं, सिविल लॉ में आता है. अभी जस्ट मैंने बताया कि सिविल लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता है, बिजनेस लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ एंड बिजनेस लॉ, ये आता है हमारा सिविल लॉ के अंदर. और क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है जैसे कि इलीगल एक्टिविटीज़ जो होते हैं जैसे कि मर्डर है, चोरी का केस है, वट जो थिंग्स होते हैं वो आते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर. तो आई होप ये आपको लॉ के बारे में समझ में आया. लॉ भी दो टाइप के होते हैं, एक नंबर वन सिविल लॉ एंड नंबर टू क्रिमिनल लॉ. लेकिन
लॉ में क्या होता है कि हम अलग अलग तरह के रिलेशंस रखते हैं बिजनेस के अंदर। तो रिलेशन भी देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1 नेचुरल रिलेशन, सोशल रिलेशन एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। तो नेचुरल रिलेशंस आपको मैंने अभी बता दिया कि जैसे कि एग्जांपल है पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स, उनका रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, इसलिए नेचुरल रिलेशन में आता है। सोशल रिलेशन उस चीज़ को कहा जाता है जैसे कि फ्रेंड्स है, कलीग्स है, नेबर्स है, तो इनके रिलेशंस के भी लॉ होते हैं। एंड नंबर 3 है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हम यूनिट 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आज का सेकेंड डे है, मैं आपको सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन लॉ क्या होता है ये बता दूंगा। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन लॉ इज़ वन टाइप ऑफ लॉ, देयर विल बी अ बायर, देयर विल बी अ सेलर। मतलब वहाँ पे क्या होता है, सपोज हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो वहाँ पे बायर और सेलर का रोल होता है। उस रोल के अंदर कौन से रूल्स और कौन से एक्ट आते हैं और कौन से एक्ट लागू किए जाते हैं, ये हम कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन लॉ से समझने वाले हैं। तो ये जो हमारा जो मेन मोटिव है वो है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन लॉ के ऊपर हम स्टडी करने वाले हैं। तो इन द सेम वे हमारे पास यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि मैंने ऑलरेडी कल आपको मीनिंग बता दिया, बिजनेस लॉ की डेफिनेशन क्या है वो भी मैंने आपको अपलोड किया हूँ मटेरियल के अंदर। सो आप ये बिजनेस लॉ के रिलेटेड कंसेप्चुअल पढ़ते जाइए। इंशाल्लाह मैं आपको स्टडी मटेरियल भी टीचमेंट के अंदर शेयर करूँगा जो कि आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। सो होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं बिजनेस लॉ के अंदर है, नंबर 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि हम अभी मैंने आपको कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन के बात किया हूँ, तो वो पूरा टॉपिक हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आएगा। सेकेंड यूनिट है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, ये हम देखेंगे जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स होते हैं। नंबर 3 यूनिट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यूनिट 4 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडेंट एक्ट 2002। एंड लास्ट टॉपिक है, लास्ट यूनिट है साइबर एंड आईटी एक्ट 2000। तो हम ये 1 बाय 1 फॉलो करते जाएंगे। तो आज सेकेंड डे था जिसमें मैंने आपको लॉ क्या होता है, डेली बेसिस में लॉ क्यों यूज़ किया जाता है, लॉ में कितने रिलेशंस होते हैं, लॉ के कितने टाइप्स होते हैं, तो मैंने आपको बताया सिविल एक लॉ है एक और क्रिमिनल लॉ है। तो सिविल लॉ में कौन से टाइप्स आते हैं, जैसे कि सिविल में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ एंड बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ हम ये पढ़ने वाले हैं जो कि ये किसके अंदर आता है, नेशनल लॉ के अंदर आता है, नॉट इन द इंटरनेशनल लॉ। तो लॉ में 2 टाइप से, नेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। एंड नेशनल लॉ हम जो पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग के लॉज होते हैं, अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, बिजनेस लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, प्रॉपर्टीज़ लॉ एक्सेट्रा। एंड इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो एक कंट्री बेसिस पे होता है, उनके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस हर जगह के कंट्री के चेंज होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ए इंटरनेशनल लॉ। सो आई होप ये आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। In case if you have any question query, you can ask by the comment, you can call, you can WhatsApp me. I will inshallah response to you. So thank you very much for watching this video.